Hello students, today we are going to start a chapter 13 of your subject EVS, that is Environmental Studies, and it's a part of your unit 2, that is Precious Water. It is the last chapter of this unit, that is Let's Play with Water. Okay, after this we'll be studying or starting a new unit. Now students, as the name suggests that this chapter consists of different properties of water. We'll be discussing the different properties of water, as what are the different properties of water are. Okay, that is how हम इनसे किस तरह से like how we can imagine and how can we like let's play with water means that how this water can change its form, its taste, its color by addition of some things or by how this water like we'll be discussing the properties of water in this chapter. Okay, now suppose you are taking a glass of water. आप उसमें 1 teaspoon sugar ऐड कर दीजिए. So what you will be seeing, and जब आप stir करेंगे, so वो dissolve हो जाती है completely, and now you will not able to identify कि water कहाँ है और sugar कहाँ है. बस और क्या होगा, उसका taste change हो जाएगा. It will become sweet in taste. So हम ऐसे ही देख सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो water में dissolve कर सकती हैं. So there is an activity you have to do this activity. So what is in this activity is that you will be taking 3 glasses. Okay, so I am taking 3 glasses. Okay, अब इन तीनों glasses को आप क्या करिए, you fill with water. Half fill this 3 glasses half with water. So suppose here I am filling it. So मैंने तीनों को equal amount of water से fill कर दिया. अब first glass में you add in the first glass you will be adding salt. आपने क्या add किया? 1 teaspoon salt add किया. सेकेंड ग्लास में आप 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दीजिए और इन द लास्ट ग्लास ऐड 1 टीस्पून ऑफ चॉक पाउडर. ओके, आप क्या करिए, इन तीनों को अच्छे से स्टर करिए. ओके, अच्छे से स्टर कर लीजिए और लीव देम फॉर सम टाइम. ओके, स्टेबल होने दीजिए, कोई पानी रुक जाए. फिर आप क्या देखेंगे कि जो सॉल्ट था ये कंप्लीटली डिसअपियर हो गया और अगर आप इसे टेस्ट करके देखेंगे so it will taste salty in color. taste will change to salt. ऐसे ही salt will completely disappear. ऐसे ही sugar will completely disappear and जो चॉक पाउडर होगा बच्चा, वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो नीचे सेटल हो जाएगा. जैसे स्टरर हटा दूं मैं, ये स्टरिंग जो जिसके लिए हमने ये स्टरर यूज किया था, चॉक पाउडर क्या होगा, नीचे जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा. सो क्या होगा, चॉक पाउडर क्या हो जाएगा बच्चा, चॉक पाउडर विल settle down at the bottom of glass. Okay, so आगे क्लियर है आपको? शुगर और सॉल्ट पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और चॉक पाउडर नहीं होता है.
तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट इज वो सॉल्युबल होते हैं, और कुछ सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, हम उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. So let me wrap this and I will be telling you what are soluble substance and what are insoluble substance. And this activity shows you the property of water that is called solubility. Okay? Okay, so let's wrap this, then we'll be writing about this property of solubility. So हमने इस activity से कौन सी property establish की है water की? The property of solubility. Okay, so this is the property of water that we established from this activity. Now solubility means कि क्या कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व हो सकता है या नहीं होता. ठीक है, सो दो तरह से हो सकते हैं, या तो सॉल्युबल है. सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होंगे? द सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर. ओके, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करते हैं हम उन्हें कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस. सिमिलरली जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सो इनसॉल्युबल substances, the substance that cannot dissolve in water. और अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें, सॉल्ट, शुगर, और अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखें तो चॉक, पाउडर, सैंड, एक्सेट्रा, इसमें भी एक्सेट्रा. ओके, सो ये एक्टिविटी आप जो हमने अभी परफॉर्म की है ये आप और अपने आप भी कर सकते हैं. ओके, सो you can take different other items you like sand, jaggery, slag lime, turmeric, chili powder, kerosene, wax, और देखिए क्या वो आइटम soluble है या नहीं है soluble. ठीक है, so you will be identifying, और आप अपनी टेबल में नोट डाउन कर सकते हैं कि कुछ जो आइटम soluble है और जो आइटम insoluble है. होता क्या है बच्चा, देखिए अगर आप कोई ग्लास लेते हैं, ठीक है, और उसमें सैंड फिल करते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद water settles in the sand. इसका क्या होता है, क्या है, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सैंड के और वाटर के, इनके बीच में बहुत स्पेस होती है. सो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स के पास की जो स्पेस होती है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल ऑफ सैंड एक दूसरे के एडजस्ट कर लेते हैं और इसलिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं. बट चॉक पाउडर के साथ क्या होता है कि वो लोग मिल तो जाते हैं बट वो जो स्पेस होती है बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ the sand and of this water and chalk, they are not able to dissolve these molecules into them. But sugar और salt अपने आप को dissolve कर लेते हैं water molecule के बीच की जो space होती है उसमें बिल्कुल. Okay, so this is the activity and this shows you the property of solubility. What is the property of solubility? Whether that substance can dissolve in water or cannot dissolve in water. Now we'll be discussing the next thing that is called fast slow dissolution. Okay, let me wrap this. Okay, the heading that we are going to study is fast slow dissolution. पहले
हेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फास्ट स्लो डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन क्या होता है ये बताएंगे पहले हम आपको। बच्चे डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज आपके, हम डिसॉल्व कर रहे हैं कोई भी चीज, तो वो कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रही है और कितनी जल्दी डिसॉल्व नहीं हो रही। इसलिए विल बी स्टडिंग कि भाई फास्ट स्लो डिसोल्यूशन। कभी कभी आपकी मम्मा आपको नाइट में जो मिल्क देती हैं, एंड so many of you may take this milk with a spoon of sugar. So क्या होता है, कभी आप पीते हो तो एंड में शुगर बची रह जाती है। पता है क्यों होता है? बिकॉज मे बी द मिल्क इज आइदर कोल्ड और द शुगर विच इज एडेड इज नॉट स्टर्ड प्रॉपरली, दैट इज उसे अच्छे से मिक्स नहीं किया गया, इस वजह से वो शुगर रेसिड्यू रह जाता है नीचे। ओके, सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक। सो यू हैव टू टेक 2 ग्लास। Now, अब ये जो ग्लासेस आपने लिए हैं, fill them with equal amount of water. Okay? दोनों में वाटर कैसा होना चाहिए? In equal amount. Now add दोनों में, okay? दोनों में आपको बराबर से add 1 teaspoon of sugar. ठीक है? अब आप क्या करिए, सपोज 1 ग्लास में जिसमें शुगर डाली आपने, यहाँ पे भी डालिए, ठीक है। आप क्या करिए, आप 1 ग्लास, कोई सा भी 1 ग्लास को तो एज इट इज छोड़ दीजिए, किसी 1 ग्लास में एक स्टर या एक चम्मच लीजिए या स्पून लीजिए या एक स्टिक लीजिए और इसे अच्छे से स्टर करिए। क्या करिए? स्टार्ट स्टरिंग इट, स्टार्ट स्टरिंग इट। ओके, अब आप क्या करेंगे, सी आफ्टर सम टाइम यू विल बी सीइंग कि ये जो स्टर वाला जो ग्लास है इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं रहेंगे। सो दिस इज द एक्टिविटी दैट यू हैव परफॉर्म। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे कि भाई आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, sometimes what happens, this is the glass that you have drawn. Okay, यहाँ पे कोई भी शुगर का रेसिड्यू नहीं रहेगा। ओके, आपको यहाँ पे कोई भी शुगर का कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर भी, बहुत अगर रहा तो बहुत माइन्यूट सा शुगर रहेगा, वरना आपको यहाँ पे कोई शुगर विजिबल नहीं होगा। और इस ग्लास में आपको शुगर ऑलमोस्ट दिखेगा या विजिबल होगा। सो टेल मी विच ग्लास इज मोर सॉल्युबल, दिस और दिस? Why this sugar in this one glass is more soluble than the sugar in the other glass? So इसमें solubility इसमें नहीं है, because यहाँ पे हमने stirring नहीं की, उसे fast मतलब जल्दी जल्दी डिजोल्व करने के लिए कुछ हेल्प नहीं दी, इस वजह से इसमें solubility कम रही और इसकी solubility ज्यादा रही। So what happens when we just stir water, this mobility of water increases, और जब ये mobility of water increase करती है, so it also increases the solubility of water. Okay, so next thing we will be doing another activity regarding this fast and slow dissolution. So एक method है कि stir करके हम solubility increase कर सकते हैं। Now we'll be discussing the next activity. Okay, now this activity is also similar in nature. So you have to take 2 glasses of water। एक में आप ऐड करिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपको ऐड करना है। आप इसमें ऐड करिए कोल्ड वाटर और इसमें आप ऐड करिए हॉट वाटर। ओके, और आप दोनों में यू ऐड 1
add 1 teaspoon of sugar और salt, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं. ओके, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि शुगर ही कर सकते हो, आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट इन इट. अब छोड़ दीजिए इन्हें. प्लीज नोट डाउन कर, आप ध्यान से देखते रहिए किस टाइम में कितना टाइम लेगा कि कौन से में से शुगर जल्दी या सॉल्ट जल्दी डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ. सो यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट द वाटर विच इज हॉट, इट, जैसे मान लीजिए ये शुगर है, ये आपने ऐड की 1 टीस्पून और यहाँ पे भी आपने ऐड की 1 टीस्पून. ओके, सो व्हाट हैपेंस, the sugar also okay. अगर हम टाइम के हिसाब से देखें बच्चा, तो जो हॉट वाटर में शुगर, इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग हेयर फास्टली. ओके, सो यहाँ पे शुगर क्या होगा, जल्दी डिसॉल्व होगी, दैट इज वो कम टाइम लेगी, और यहाँ पे भी डिसॉल्व हो जाएगी अगर हम टाइम देखेंगे, बट द टाइम टेकन बाय दिस शुगर विल बी लार्ज. ओके, सो किस ग्लास में दिस सोल्यूशन जल्दी हुआ, हॉट वाटर में. सो the temperature of water also increases solubility. If the temperature is high, that is if it is hot, then the solubility will be high, and if the temperature is low, then the solubility will decrease. Okay, so I will be giving you some question regarding this exercise that we have done now. Okay, so let me rub this and I will be giving you the questions regarding this. Okay, first, perform. This is simple activities है. हमने इसमें आपकी आई थिंक 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की है बच्चा, एंड ये तीनों एक्टिविटीज इतनी सिंपल है कि आप घर में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. परफॉर्म all the 3 activities by yourself. Okay, आप अपनी मम्मा पापा की हेल्प ले लीजिएगा, क्या मीन्स आइटम्स मंगवा लीजिए, बट परफॉर्म आप ही करिएगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज soluble substance. Next, give what is insoluble substance. Okay, next is give examples of soluble and insoluble substances. Next question is, how can we increase the solubility of a substance in water? Okay, the last question is, in which situation out of the 2, that is hot water
with salt and cold water with salt, which will dissolve faster. Okay, so these are the questions that I'm giving you. पहला क्वेश्चन क्या है, आपको तीनों एक्टिविटीज जो हमने डिस्कस की है वो परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट इज कि सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है आपको बताना है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या होता है ये बताना है. देन आपको एग्जांपल्स देने हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करना है हमें. ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन आउट ऑफ दिस टू, दो सिचुएशन दैट इज हॉट वाटर है सॉल्ट के साथ और एक है कोल्ड वाटर विथ सॉल्ट. तो इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन में वाटर जल्दी डिसॉल्व होगा, किस में जल्दी होगा, हॉट वाटर वाले में या कोल्ड वाटर वाले में. लेट मी चेंज द कलर. विच विल dissolve the salt slowly. Okay, so now give the answer. Okay, this completes the questions and now we'll be discussing the further topics of this chapter.